The Book of Psalms. Psalm 20. To the chief musician, a psalm of David. The Lord hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion. Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice. Selah. Grant thee according to thine own heart, and fulfill all thy counsel. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Now know I that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Some trust in chariots, and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Save, Lord. Let the King hear us when we call. भजन 20 कुल पद 9। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार के करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। Coming back to the start where you found me. I'm coming back to your heart. Now I surrender, take me. This is all I can bring.
the start where you found me. I'm coming back to your heart. I surrender, take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. On the heaven shot, let the future begin. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. On the heaven shot, let the future begin. Alive, I come alive, I am alive on God's great and throne. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great and throne. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great and throne. Take me, this is all I can bring. You'll never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. On the heaven shot, let the future begin. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. On the heaven shot, let the future begin. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great and throne. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great and throne. देखे हैं सारी दुनिया में, तेरे जैसा कोई इस जहां में। देखे हैं सारी दुनिया में, तेरे जैसा ना मिला कोई इस जहां में। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। पापों से बचाता, श्रापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। One and only यीशु नाम, 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 one and only यीशु नाम। पानी पे वो चलता है, तूफानों को थमाता है। पानी पे वो चलता है, तूफानों को थमाता है। आशीष वो देता है और रोगों को चंगा वो करता है। पानी पे वो चलता है, तूफानों को थमाता है। आशीष वो देता है और रोगों को चंगा वो करता है। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। पापों से बचाता, श्रापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। One and only यीशु नाम, 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 one and only यीशु नाम। गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। वचनों से अपने भरता है और अद्भुत नजारे दिखाता है। गिरते को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता
दूसरों से अपने बढ़ता है और अद्भुत नजारे दिखाता। कोई नहीं है उसके जैसा, बस वो ही है एक कमाल का। कोई नहीं है उसके जैसा, बस वो ही है एक कमाल का। पापों से बचाता, श्रापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। One and only यीशु नाम, 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 one and only यीशु नाम। करते हैं हम तुझको सलाम, करते हैं हम तुझको सलाम, करते हैं हम उसको सलाम, करते हैं हम उसको सलाम। One and only यीशु नाम, one and only यीशु नाम, one and only यीशु नाम, one and only यीशु नाम। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। 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 One and only यीशु नाम, one and only यीशु नाम, one and only यीशु नाम, one and only यीशु नाम। करते हैं हम उसको सलाम, करते हैं हम उसको सलाम। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है,
एक्चुअली दिसंबर में पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। याद रखो मेहनत करना पड़ता है, और उतने में मैं सिर्फ 8 महीने में आने वाला नेक्स्ट ईयर जो कि 1993 राइट 93 में ऑलमोस्ट अप्रैल मई में मैं क्या करने लगा, लोगों के पास घर घर जाकर क्या कर रहा था, प्रभु का प्रार्थना करता था। विमको चाल से लेकर तभी उसका 2 साल के बाद मेरे को 94 में किशोर मिला है, 94 में किशोर, हाँ। तो किशोर, लेकिन किशोर का भाई 93 अगस्त या नवंबर में मिला। तो सप्ताह हम लोग क्या करें, जब मैं किशोर के भाई को चार्ल्स को उद्धार में लेकर आया तभी मैं सेवक नहीं था। याद रखो मैं सेवक नहीं था तभी। प्रेज द लॉर्ड। और याद रखो 94 में मेरा क्या हुआ, सीधा मैं सेवा करने लगा। अप्रैल में ट्रेनिंग कर रहा था, मैं बाइबल का ट्रेनिंग करता था दिन भर, और 4 बजे जाकर हम लोग प्रचार करते थे, 4 से फिर शाम को 7 साढ़े 7 तक फिर घर पे आते थे। ये मैन कितना फटाफट हो गया, देरी लगा क्या, लेकिन क्या करा हम लोग, स्पिरिचुअल सिर्फ एक्सरसाइज। सब लोग बोलो क्या करें, आमीन। तो आप लोग सभी को अगर आत्मा में बढ़ना है, प्रभु यीशु का सुनना है, दर्शन देखना है, सपने से बात करना है, लोग चंगा होना है आपके हाथ के साथ, तुम्हारा घर में प्रार्थना सुना जाना चाहिए, तो क्या होगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं करना, दिन रात कंटिन्यू प्रार्थना करना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रभु का वचन पढ़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम लोग सभी लोग बोलो मैं चुना हूँ, बोलो मैं चुना हूँ, क्योंकि बाइबल में कहता है जैसे तुम यीशु के पीछे चलने लग जाते तुम लोग क्या हो गया, चुने गए। योर चोजन वेजल, योर चोजन रॉयल फूड, है ना। बाइबल पत्रस कहता है तुम याजकीय संतान हो, याजकीय लोग हो, ऑलरेडी तुम याजकीय लोग हो, तो इतना बहुत बड़ा बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहता हूँ दिसंबर तक अपने सारे बच्चे 11 से लेकर 25 प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में 2 कपल्स बैठे हैं, एक है ब्रदर शेखर और सिस्टर, उनके साथ ब्रदर चंद्रू और नर्मदा भी है, और भाई इलिश हमारे बीच में। उनसे कुछ छोटा क्वेश्चंस पूछेंगे, उनका आंसर्स रहेगा। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन और आंसर्स नहीं बल्कि इंटरव्यू टाइप भी रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर उनको गाइड करें। आइए हम तैयार थे, क्लैप करते हैं। चर्च ये हम आपका स्वागत करते हैं। एक ऐसी छोटा सा एक इंटरव्यू है। तो जैसे आज के अभी जो सिचुएशन चल रहे हैं उसके ऊपर हर एक घर का अलग अलग अपना परिस्थिति है, तो उसके ऊपर ही हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 2 जन बैठे हुए, 2 कपल्स है, 2 परिवार है, और मैं उनसे कुछ सवाल करूँगा। ये कोई ये नहीं है, हार जीत का कोई बात नहीं है, बट एक ऐसा हमारे लिए, जैसे कि अभी हम लोग इनको बिठाने से पहले हमने कहा था कि एक जोड़ी वो है जो अनुभवी है, यानी कि सांसारिक रूप में पति पत्नी का जीवन का एक अनुभवी है, और एक जोड़ी वो बैठा है जैसे अभी स्टार्ट है, यानी कि शुरुआती है। हालांकि इनके भी 2 बच्चे, पर ये यंगस्टर्स के इसमें हम लोग गिनती करते हैं। तो दोनों का हम लोग तालमेल में ये देखेंगे। मैं एक ही सवाल पूछूंगा, लेकिन दोनों को जवाब देना है, ठीक है ना।
तो पहला मैं एल्डर से स्टार्ट करूँगा। अभी आप बताइए, अभी जैसे कोरोना वायरस इस दुनिया में आया, तो स्टार्टिंग में आप लोग को नहीं मालूम पड़ा, लेकिन आने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? तो वायरस खास करके भारत में जब आया तब आपको कैसा लगा? शुरुआत में आप लोगों को पता नहीं था, लेकिन अचानक वायरस भारत में आ गया, तो उस दिन आपका प्रतिक्रिया क्या था? क्या आपको लगा ये वायरस के प्रति? आप क्या सोचते हैं? पहले तो थोड़ा डर लग रहा था, उसके बाद में न्यूज़ सुनते और प्रार्थना में हो गए, तो उन पे विश्वास रखा। आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा अनुभव रहा जब पहला वायरस सुना उसके बाद? तो बीमारी मतलब भारत देश में आया, आप लोगों को क्या लगा उस टाइम? इसमें जब मालूम पड़ा कि लॉकडाउन करना है, तो इस वर्ष से हम लोग कुछ मालूम नहीं। जिसने 21 तारीख को जो लॉकडाउन कराया तो वो कार्य करके बैठ के बोला, लेकिन वो बीमार इतना बड़ा करता है बीमार, तो इसलिए हम कि जैसे 1 महीना बोला, 2 दिन बोला तो ठीक है, 2 दिन टीका जाएगा, लेकिन और ज़्यादा दिन लगा है तो लगता है कि बीमारी बहुत बड़ा है, तो अभी हम लोग भी थोड़ा डर गया। लेकिन ऐसे है कि लॉकडाउन अच्छा भी हो गया, गिर गया, लेकिन कई सीखने भी मिला, बहुत सारा बातें इसमें थोड़ा उनको मालूम भी पड़ा कैसे क्या करना। तो संसारी बात हो गया। अभी मैं आपसे पूछूंगा, इस लॉकडाउन के दौरान आपने एज ए एक परमेश्वर का जन होने के नाते आपने क्या किया? लॉकडाउन में परमेश्वर का जन होने के नाते आप लोगों ने क्या किया? इस लॉकडाउन में मुझे ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि जितना हमारी लाइफ में बाइबल इतना नहीं पढ़ता था, इतना प्रेयर नहीं करता था, ये लॉकडाउन के अंदर बहुत बाइबल पढ़ा, बहुत सेवक का प्रचार भी सुना, और प्रभु में जितना लंबा था उतना नज़दीक गया। ये लॉकडाउन का भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। हम आप कुछ बोलेंगे? आपको क्या लॉकडाउन से आपका तो वही सवेरे से लेकर शाम तक किचन का काम, इसके अलावा लॉकडाउन में और आपके ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ गया रहेगा? और क्या आपको क्या लगा इस लॉकडाउन में? आप एक परमेश्वर का बेटी होने के नाते आपने इस लॉकडाउन में आप क्या सोचा और क्या किया? यही सोच रहा था सबको चंगाई मिले, हमारा मुल्क किसी को कुछ ना हो, आशीष मिले, मैं यही सोचती हूँ। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया। मुझे वही अनुभव बोलते हैं मेरे प्रिय, सच में ही गवर्नमेंट जो है वो 50 साल के ऊपर के लोगों के लिए ये जो कोरोना वायरस से एक तरह से खतरे से खाली नहीं है, पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस लॉकडाउन के दौरान इन्होंने एक अच्छा काम किया कि इन्होंने परमेश्वर के करीब आए। ठीक है ना? मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से, आप एक यंगस्टर होने के नाते इस कोरोना वायरस को मतलब जल्द से जल्द जाने के लिए आपने कभी कुछ सोचा था कि कोई ऐसा, जैसा अभी साइंस अभी दिनों में साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं ना, वैक्सीन को तैयार करें, तो आप लोगों ने ऐसा आपके मन में क्या है कि इस कोरोना वायरस को हटाने के लिए अगर आपको मौका देता कि वायरस को हटाना है हमको, तो आप वैक्सीन के लिए आप क्या करते थे? क्या हिसाब से आप वैक्सीन को तैयार करते थे? आप साइंटिस्ट लोग नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पर समझिए कि आपको मौका दिया हमने, एज एक मेंबर या फिर एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के, अगर आपके पास मौका आएगा कि भाई ये वायरस को हटाने के लिए कुछ वैक्सीन मतलब उसका जो भी एंटीबायोटिक तैयार करना है, तो उसको रोग हटाने के लिए आप लोग आपकी तैयारी कैसा करते थे? अगर आपको मौका मिलता तो आप क्या करते? इसको हटाने के लिए परमेश्वर का वचन, तो इस वचन के लिए प्राप्त करें। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ब्रदर आप क्या सोचते हैं? इस लॉकडाउन में हम लोग को जब गवर्नमेंट मालूम पड़ा, जैसे ज़्यादा करके कभी मेरे लाइफ में तो कभी देश के लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन इस महीने में हम लोग को 1 महीना कंटिन्यू भारत देश के लिए। सो मेरा 4 सवाल हो गया, अभी 5वां सवाल आ रहा है। अपना बाइबल रीडिंग का आपने बताया जब लॉकडाउन के पहले आप इतना बाइबल रीडिंग नहीं करते थे, आप भी अपना, तो लॉकडाउन में आपको एक मौका मिला कि आपको बाइबल रीडिंग करना है। ठीक
ठीक है ना। तो आपका पहला का जीवन, बाइबल पढ़ने से पहला का जीवन, जब आप नौकरी करते हैं जो भी, तो उस टाइम का जीवन में आपको बाइबल पढ़ने नहीं मिला, लेकिन लॉकडाउन के दौरान आपको बाइबल पढ़ने का मौका मिला। तो आप अपने आप में या आपके परिवार में बाइबल पढ़ने के बाद में कोई बदलाव आपके परिवार में, आपकी पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में कुछ चेंजेस या खुद के अंदर कुछ बदलाव आया है बाइबल रीड करने के बाद? वेरी गुड। वो बदलाव ये हुआ कि ऐसा कोई वचन जो आपको स्पर्श किया रहेगा ना कि ये वचन एक्चुअली इतना दिन से ऐसा आ रहा है सामने, पर इतना मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आपको इतना अच्छा समय मिला कि उस वचन के ऊपर आप अच्छा मनन कर पाए। ऐसा कोई वचन आपको स्पर्श किया जो आपके परिवार के लिए, आपके लिए वो सच में? ज़्यादातर का रोज का सैम्स 91 और सैम्स 1 और मुझे ने बोला वो हिसाब से रेस्टोरेंट के उसमें लिखा हुआ मैं करता हूँ अपना इंडिया देश, अपना भारत देश के लिए, अपना मंत्री लोगों के लिए, अपने सारे अधिकारियों के लिए। और बाइबल पढ़ने के बाद में अभी लॉकडाउन में ये हुआ कि जो भी अपना पहले बहुत गुस्सा आता था, कोई हर एक बात करते थे, हर एक बात से वो बहुत सहन शक्ति है, जिसमें अभी वही बोलते पापा इतना ऐसा बन गया। 4 महीने का पीरियड यही बहुत बड़ा महीना रहता है मेरे जिंदगी में। बहुत अच्छा उत्तर है सच में। मतलब मैं आपको, और ये मेरा छोटा सवाल आपके लिए, अभी स्कूल जो है इन दिनों में ऑनलाइन चल रहे हैं, और पहले अपन कैसे बच्चे लोग को स्कूल में छोड़ना जो भी, तो वो वाला समय अच्छा था कि ये वाला समय अच्छा लग रहा है? ऑनलाइन अभी स्टडी हो रहे बच्चों का, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो स्कूल जाके आना, वो आपको अच्छा लगता था? दोनों में कौन सा अच्छा लगता था? ले जाएगा तो स्कूल में जाएगा वही अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी ऑनलाइन में कई बच्चों को समझ में आ रहा है, समझा वाला बता रहा है, तो लेकिन कई लोग नहीं समझ रहे, तो वो भी जब सामने सामने बोर्ड पे जो दिखाएंगे वो लोग बराबर लेकिन ये लोग के साथ ऑनलाइन किया है वो भी अच्छे है, ऐसे नहीं कि गलत है, लेकिन के साथ कोई बच्चे लोग को पूरा डिटेल में समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तक मुझे आ रहा है, सिस्टर नर्मदा टीचर है हमारी HM की, ट्यूशन लेती है और बहुत बच्चों को पढ़ाती थी। सो आपका क्या बोलना है? आप एक टीचर है, सो आपको कैसा लगता है एजुकेशन मिनिस्ट्री को? आप क्या मतलब बोलेंगे कि भाई ये रहने तो अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन स्टडी और बच्चे आराम से उठ रहे हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं वो बच्चे स्कूल सवेरे उठ के अपना दफ्तर बैग लेके स्कूल जाए और आए, वो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आप क्या बोलेंगे अगर आपको समझो मिनिस्टर बना दिए समझो क्या एजुकेशन मिनिस्टर, तो आप एक टीचर है, आपने पढ़ाया भी है बच्चों लोग, है ना? सो आप एक टीचर होने के लिए आप क्या सोच सकते हो उसके बारे में, पढ़ाई के बारे में? दोनों में कौन सा अच्छा लग रहा है? अगर आप टीचर है तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि स्कूल में जाके पढ़ाई, या फिर जो घर में आप पढ़ाते थे या ट्यूशन लेते थे वो ज़्यादा अच्छा लगता है? ऑनलाइन तो अच्छा लगता है, पर स्कूल के लिए लॉकडाउन नहीं है ना, सबके लिए लॉकडाउन है, तो पब्लिक को थोड़ा परेशान हो जाएगा, तो इसके लिए वो बच्चे स्कूल जाएगा तो ये तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं जल्द से जल्द स्कूल ओपन करें, क्योंकि बच्चे आपने भी देखा, जैसे हम लोग देखे यहाँ पे 2 तरह के कपल्स बैठे हैं, इनका ऑलमोस्ट सभी बच्चे एजुकेटेड हो गए हैं, है ना? इन्होंने भी वो ज़माना देखा बच्चों को स्कूल लेके जाने का, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सो हम ये देख रहे हैं कि जो स्कूल जाना वो सबसे बेहतर था, क्योंकि बच्चों का से कंट्रोल था, सवेरे टाइम पे उठना, उनका नाश्ता पानी जो भी है, स्कूल की तैयारी, फिर पढ़ाई की तैयारी, खेलने का कूदने का, सबका एक अच्छा शेड्यूल हुआ था। अब टाइम पे सभी बच्चे सब कुछ करते थे, टीवी देखना, पढ़ाई करना, खेल कूद करना, मिनिस्ट्री में बच्चों को मम्मी डैडी को सपोर्ट करना, हर चीज़ में बच्चे क्या होते थे कहीं ना कहीं, हाँ मतलब सपोर्ट करते। पर अभी लॉकडाउन की वजह से हर किसी का टाइम टेबल चेंज हुआ है। पहले रात को 10 बजे सबका गुड नाइट होता था, आजकल 2 बजे भी ऑनलाइन रहते हैं, सो सबका गुड नाइट मोर देन 3 o'clock के आसपास हो जाते हैं। सो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल ओपन करने की कोशिश करें और वैक्सीन को तैयार करके बच्चों के करें। ठीक है, मेरा 6 सवाल हो गया, क्योंकि 7वां एक कॉमन सवाल आप दोनों को पूछता, आप दोनों को जवाब देना है। ओके, अभी करंट स्थिति में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बहुत सारे लोगों का नौकरी चली गई, तो ये
मैं सरकार के ऊपर या लोगों के ऊपर मैं ब्लेम नहीं करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत दुखदायी बात है और बहुत एक मतलब दिल को दुख देने वाली बात है ना। सो कुछ लोगों का जॉब है और कुछ लोगों का जॉब नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महीने में आधा दिन भरते हैं, मतलब 15 दिन भरते हैं और उनको सिर्फ 15 दिन का ही सैलरी मिलता है, फुल मंथ का नहीं मिलता। ठीक है, अब वो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों ने घर लेके रखा है, EMI नहीं भर पा रहे, बहुत सारे लोगों का कहीं कहीं ये लोन्स लेके रखा है, पर्सनल वो भर नहीं पा रहे। 15 दिन की सैलरी में ये सब कुछ नहीं होता है, घर और बाहर का चीज़। तो अगर समझिए, अगर आप तो रिटायर्ड हो गए, और अभी रिटायर्ड होने का वो आपको एक अच्छा मौका मिला कि आप लॉकडाउन में रिटायर, अगर आप रिटायर्ड ना होते हुए आप सरकारी कर्मचारी होने के नाते आप काम पर जाते थे, तो काम पर जाने के बाद आपको तो फुल पेमेंट मिलता है, बराबर है। तो आपको उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, जो आपके सामने समझिए जो है जिसकी नौकरी चली गई वो बैठा हुआ है, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं, अभी रिटायर्ड नहीं हो रहे, सब कुछ आप काम कर ही रहे, लेकिन आप ही के सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से उसका कंपनी बंद हुआ है। तो कंपनी बंद हुआ है तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, वो पूरा तरह से वो अपना ये बंद। तो उस व्यक्ति के लिए आपका दिमाग में क्या बात है? परमेश्वर से ये दुआ मांग करता है कि जल्दी से जल्दी उसको नौकरी मिले, या अगर वो जो नौकरी चाहता था वो नौकरी भी नहीं मिले तो जो कहीं से उसको नौकरी मिले और उनका जो जीवन का जो जरिया है चलने के लिए वही मैं दुआ करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि समझिए, आप समझिए जैसे कि घर काम करने वाली भी कुछ महिलाएं हैं, इन दिनों में उनको भी कोई नहीं ले रहे घर पे, क्यों लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से कोई उनको बुला नहीं रहे काम को। तो आप वैसे महिलाओं के बारे में आप क्या सोचेंगे? यही सोचते हैं कि इधर उनको अच्छे जॉब मिले, फिर उसका पूरा परिवार अच्छे से रहे। जॉब मिले वो ठीक है, लेकिन मेरा ये बोलना है, क्या आप उनको बोलेंगे कि सामने वालों को, जैसे कि अभी मेरे घर में समझिए मैं मतलब एक काम वाली बाई को मैं नहीं रखा, अब लॉकडाउन की वजह से मैंने उसको क्या किया, मत आओ करके बना। तो आप क्या बोलेंगे, मुझे उनको बुलाना है काम पे, काम करने दो, ऐसा मैं अपने आप से तैयार करके उनको बुला लूँ काम पे, क्या ये जब तक ये लॉकडाउन नहीं होता मैं उनको बोलूँ नहीं आप बताइए? बुलाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए डेली वेजेस का उनको भी तकलीफ है। ठीक है, अब आप बताइए आपका क्या प्रतिक्रिया है उसके बाद? अभी आप तो प्राइवेट जॉब करते हैं, आप तो ठीक है, आपका गाड़ी वगैरह आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपका जॉब चल रहा है, ठीक है ना बताइए, तो आपके सामने आपका ही कोई कलीग या कोई आपका साथी है जिसका नौकरी छूट गया, जो रोज आप मिलते जुलते हैं, चाय पीते एक साथ, गप्पा मारते हैं, सपोज ऐसे टाइम पे आप भी आपके साथ काम करने वाला, आप अच्छा पोस्ट में, लेकिन नीचे वाले पोस्ट को सबको हटा देगा, सब बोलेगा सफाई के लिए 4 आदमी की जरूरत है, 2 ही जन आओ, ऑफिस अपना अभी क्या हो गया थोड़ा देर खुला रहता है, 2 जन को निकाल दो। ऐसे टाइम पे आप क्या बोलेंगे उनके लिए, नौकरी के लिए आपका क्या राय है? ये सोचते कि प्रार्थना करते कि परमेश्वर कोरोना वायरस जल्द से निकल जाए और सबको फिर से एक साथ स्टार्ट होने को, एक कंपनी जो भी जॉब से फिर हर एक जन को फिर जॉब मिले, फिर काम पे जाए, फिर उनको सैलरी मिले। ये सोचते कि सेम आंसर। जब जॉब नहीं है तो उनकी तो करना चाहिए, जॉब नहीं है तो कई लोग देखिए मैं मिनिस्ट्री का वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक साधारण बात कर रहा हूँ। मैं आप लोग मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं समझिए, आप लोग साधारण, जैसे कि पता है इन्होंने जैसे अनुभव बोला कि अगर नहीं है तो हम उनके लिए ये करेंगे, जैसे अम्मा ने बोला जो उनको नहीं बुला रहे काम के लिए उनको बुला ले रहे, क्योंकि थोड़ा तो भी उनको सपोर्ट ले। Break a time. Praise. Start for the second session, second round. Brother Elish and the group. ओके वेलकम। ओके आइए, हालेलुया चर्च की तरफ से आपका फिर एक बार हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में 2 कपल्स बैठे हैं, यार सती एंड फैमिली और वर्टिकल जॉइंट फैमिली। तो प्रियो, जब तक आपने उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पहला सेशन इनका देखा रहेगा। अब मेरा यही सवाल था लास्ट में, मैं यही बात कर रहा था कि फिर आप जैसे मैं बताया कि बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गया, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपके साथ में भी कोई इंसिडेंट ऐसा इन दिनों में हुआ काम के बारे में, काम के प्रति या काम को लेकर कुछ हुआ है आपके साथ में? तो कैसा प्रभु ने आपको सहारा मतलब मदद किया
फिर से इन चीज़ों में उभरने की? क्या आप बता सकते हैं हम लोगों को क्या हुआ आपके साथ? जैसे लॉकडाउन में बस हमारा भी काम छूट गया, हम बस हमारा साथी जो जितना भी ड्राइवर से सभी तक तो अभी इधर तक कोई काम पे नहीं जितने ड्राइवर है, लेकिन मैं ये चाहता है कि उनको भी मतलब देख रहे, लेकिन अभी ड्राइवर लोग तो जब स्कूल ही बंद है तो मतलब ड्राइवर नहीं कर सकते। तो मेरा तो जॉब ऑलरेडी छूट गया था, लेकिन फिर मैं जॉब तो नहीं है, फिर मैं जो भी है स्कूल का ही ड्यूटी, तो स्कूल बंद है तो मेरा ड्यूटी तो बंद है। लेकिन 1 महीने के बाद और सोचा अपने 1 महीने ठीक है, और 1 महीने के बाद और लॉकडाउन बोला, तभी और थोड़ा प्रेशर आया, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। अभी मेरा जो भी स्कूल वाला पैसा देना था वो भी सब रुका के रख दिया। अभी मेरे पास खाली 4,000 कुछ गाड़ी में गाड़ी भी रखा है, तो वो 1 महीने में खत्म हो गया। अभी करेगा कि अगला महीना और डाउन कर रहा है, तो डाउन करे तो हमारे पास कुछ भी नहीं। तो मैं बोला चलो परमेश्वर कहीं ना कहीं से करे, फिर इतना मैं प्रार्थना किया जल्दी से जल्दी खुल जाए। लेकिन एक जैसा नर्मदा जॉब ऑफर है, मतलब उन लोग 1 तारीख से चालू करने वाला, मैं बोला नर्मदा बोली जब ठीक है मैं तुम बैठो घर में तो मेरा चालू हो गया, तो मैं चलो मेरे छोड़ के और आ गया। तो ऐसे ही 2 दिन गया, तीसरा दिन बोला कि उनका जो मालिक है तो उन्होंने बोला तो तुम्हारा गाड़ी है, उनको पूछा क्योंकि तुम्हारा गाड़ी है, बोला हाँ। तो ऐसा एक बात है कि मेरा गाड़ी मतलब चला गया कंपनी में, तो बोला कि ठीक है, मेरे से बात किया ऐसे सर तो कितना देते क्या है वो जो भी है, बोला कि दिन का 300 रुपये देता। बोला सर दिन का 300 रुपये तो मेरे को नहीं परवड़ेगा, और मैं बोला 500 तो मिनिमम करो, क्योंकि मेरा 300 रुपये का गैस ही जाएगा तो मैं बचेगा क्या, उससे अच्छा कोई घर में बैठो नर्मदा करेगी मैं वो करें। लेकिन परमेश्वर को अनुग्रह है कि उन्होंने मेरे को अच्छा रेट दिया, जो भी हो भले मेरा पगार नहीं निकालना लेकिन खाने पर तो मिल रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद। एक मिनट सिस्टर कुछ बोल रही है जरा ध्यान से। हाँ फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ जो जॉब पे लगा ब्रदर में जी, सर 25,000 अबव आया हाँ 2 महीने, तो वो सर 12 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो 20 के ऊपर जा रहा था। अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि रिक्शा सब चालू हो गया ना, Right. तो 16-18 तक जा रहा है। Amen. Amen. Praise the Lord. What a wonderful testimony. बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर ने सच कुछ वो मदद भी किया। बात है कि जैसा मेरे को वैसे तो ऑफर होता है 20,000 देता है 22,000 देता है, लेकिन मैं गया नहीं। और मेरा तो जो दूसरा ड्राइवर में होते उन लोग को लगा 2-3 महीना किया, और कभी बदली भी आता हाजिर मतलब डेली का हाजिर उनको भी दे जाते हैं, उनको मेरे दूसरे कोई लग सकता। Amen. Amen. मेरे Amen. प्रियो मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे अब इनके मुँह से जो भी बात निकला, हम सचमुच ये केवल एक मसीही का मुख से ही ये बात निकल सकती है कि नहीं? जैसे हमने बोला कि नहीं उनको काम पे बुला लो, क्योंकि उनका भी लाइफ है, उनका भी बच्चा है, परिवार है, उनको भी होना चाहिए। और जैसे ब्रदर भी बोले कि मैं मेरा साथ में तो हुआ मेरे कलीग्स को भी मैंने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज़ दिया, जो इनको ऑफर आ रहे थे वो उन्होंने दोस्तों को क्या किया उस जगह पर दिया, और उनका भी अल्टीमेटली वहाँ उन लोगों का भी परिवार का मीटर को मतलब एक तरह से ब्रदर ने कंटिन्यू किया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो, फिर से एक रविवार परमेश्वर ने दिया है और एक ताकि हम परमेश्वर के वचन को बांट सके। आइए हम वचन को शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आप वचनों के द्वारा बातों को करने वाले परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर हमें प्रकटीकरण को देने वाला परमेश्वर है। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, जो भी इस पुलपिट से दिया जाएगा परमेश्वर, आपका वचन वो रेमा वर्ड होकर वो जीवन बनकर हर एक के जीवन में प्रवेश होने के लिए, छुटकारा को देने के लिए, परमेश्वर आनंद को देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर इस सभा को, इस समय को, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। चर्च फिर से परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। जैसे हम गए हफ्ते एजरा और नेहमिया का दिन को हफ्ते को देखा, परमेश्वर को धन्यवाद हो
जो भी कपल्स के साथ हम बैठकर प्रार्थनाओं को किया, उनके साथ गेट टुगेदर किया, उनके साथ डिनर किया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक अच्छा समय को हम उनके साथ बिताए, प्रार्थना किया। और ये हफ्ता जो मूसा का समय है, हम विश्वास करते हैं जो भी आपने देखा है, हम जो भी वीडियोस को भेज रहे हैं आपके व्हाट्सएप में या यूट्यूब में, जो भी चर्च के बाद जो भी वीडियोस आपको दिखाया जा रहा है, हम विश्वास करते हैं कि आप सब कुछ जो देख रहे हैं और उसके अनुसार आप वचन को पढ़ रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस समय के लिए जो हम इस 8 हफ्ते का जो हिल्स एंड वैलीज का जो इस इवेंट को कर रहे हैं। हमें बहुत सा अच्छा गवाही सुनने के लिए मिल रहा है। जैसे हम किसी ने कहा कि मैं इस हफ्ते में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ बहुत से अच्छे गवाही के लिए। और हम ये हफ्ता अभी आने वाले हफ्ते हम दानियल के वीक को कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे उसके वचन को। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। धन्यवाद हर एक यूथ्स के लिए, जो यूथ्स के लीडर्स है, जो आप उनके साथ व्हाट्सएप में उनके साथ बैठकर सेशंस को लेते हैं, वचनों के द्वारा उनको एक्सप्लेन करते हैं। धन्यवाद आप सभी के लिए जो परमेश्वर के किंगडम के लिए काम कर रहे हैं और जो भी परमेश्वर के किंगडम के लिए वर्क कर रहे हैं। आप अपना समय को जो सो कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर को हर एक बातों को आपको रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद दो प्रियो हर एक बातों के लिए। और जो भी कलीसिया कर रहा है, चर्च कर रहा है, हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों का 16वां अध्याय, उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 8 को हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास 16वां अध्याय 8वां वचन। आइए हम पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। O give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the peoples. हालेलुया। वचन कहता है, ओ परमेश्वर को, प्रभु को धन्यवाद दो। गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद दो। जब वचन यहां पर कहता है ओ आओ प्रभु को धन्य कहो, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट को चढ़ाओ। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते हैं, जब हम परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, आपको पता है परमेश्वर हमारे हृदय में नए गीतों को डालता है। परमेश्वर हमारे हृदय में नए वचनों को देता है। परमेश्वर हमारे लिए नई योजनाओं को देता है, क्योंकि हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद कब दिया जाता है? धन्यवाद हम तब देते हैं जब कोई व्यक्ति हमको कुछ भेंट देता है, जब कोई व्यक्ति हमको कुछ उपहार देता है, तब हम उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ पर पहला इतिहास 16वां अध्याय 8वां वचन में कहता है कि आओ हम प्रभु को धन्य कहें। हालेलुया। हम दाऊद राजा को जानते हैं, हम सभी लोग दाऊद राजा को जानते हैं। परमेश्वर ने कैसे उसको चुना। वो एक छोटा चरवाहा था, छोटा लड़का था घराने का, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल का राजा करके चुना। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना करता था। परमेश्वर के तंबू के सामने, उस टैबरनेकल के सामने दाऊद आकर परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था। प्रियो, आज वही दाऊद हमसे कह रहा है, दाऊद एक गीत को लिख रहा है, धन्यवाद के गीत को लिख रहा है कि आओ हम प्रभु को धन्य कहें। प्रियो, हम कभी कभी बहुत
कम ऐसे समय आता है कि हम प्रभु को धन्यवाद नहीं करते हैं। लेकिन दाऊद देखो, इतना बड़ा राजा होकर उसके साथ गलतियां हुआ, उसके साथ एक बड़ा पाप हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं। और फिर भी परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगता है और वो फिर से परमेश्वर के उस तंबू में जाकर, उस तंबू के सामने जाकर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर हमारे लिए इतना बड़ा बड़ा काम किया, वचन कहता है ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट को चढ़ा, क्योंकि उसकी दया सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है कर आज हम इस पृथ्वी के ऊपर जीवित है। प्रियो, हालेलुया। कितना बड़ी बात है। संसार इस बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होकर हमारे लिए लड़ रहा है। कितना बड़ी बात है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से घराना अब इस समय में बैठकर आप लोग प्रार्थना करते हैं। आप लोग एक परिवार के साथ समय को बिताकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वचन को पढ़ते हैं। प्रियो, ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तेरी कृपा, तेरी मर्सी, तेरी दया हमारे ऊपर है कर आज के दिन हम जीवित हैं। हालेलुया। प्रियो, दाऊद कहता है कि आओ हम प्रभु को धन्यवाद करें। हम प्रभु को धन्यवाद करते रहना चाहिए। प्रियो, हमारा दिल अगर दर्द में भी रहेगा, हम दुखित रहेगा, परेशानी रहेगा, हम बहुत सोच में रहेंगे, लेकिन मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको आज एनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रियो परमेश्वर को लगातार धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते जाओ। दूसरा वचन पर वही वचन में दूसरा कहता है कि कॉल अपॉन हिज नेम। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को पुकारो। यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर का वचन उसमें कहता है कि मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। कॉल अनटू मी एंड आई विल हियर यू। हम परमेश्वर को किस तरह से पुकारते हैं? क्या जब हमें कुछ जरूरत रहता है तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं? क्या जब हम दर्द में हैं तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं? या जब हम कितना कम ऐसे समय है, यानी हम खुशी में रहते हैं ना, तब हम परमेश्वर को ज्यादा पुकारते नहीं है। प्रियो, लेकिन दाऊद कहता है कि कॉल अनटू द नेम ऑफ द लॉर्ड, यानी परमेश्वर के नाम को पुकारो। प्रियो, परमेश्वर का ही नाम, उसमें हमें छुटकारा है। परमेश्वर के नाम में ही हमें आजादी है। परमेश्वर के नाम में ही हमें उद्धार मिला है। प्रियो, हमें परमेश्वर के नाम को पुकारना चाहिए। कॉल अनटू मी एंड आई विल हियर यू। परमेश्वर कहता है मुझे पुकारो। हम परमेश्वर को पुकारने वाले लोग रहना चाहिए। हम परमेश्वर को पुकारना चाहिए, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुन, यीशु मेरे प्रार्थना को सुन। हालेलुया। हम पुकारने वाले लोग रहना चाहिए। जब हन्ना को संतान की आशीष नहीं था, वो परमेश्वर के सामने जाकर पुकारती है, वो गिड़गिड़ाती है, परमेश्वर के नाम को पुकारती है और परमेश्वर उसको आशीष देता है। प्रिय, हम भी परमेश्वर को पुकारना चाहिए। वचन कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को पुकारना चाहिए, पुकारने वाले लोग रहना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि मेरे कॉल अनटू हिज नेम। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 16वां अध्याय 8वां वचन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। 1 Corinthians 16:8। Chronicles 1 Chronicles 16:8। यहोवा का धन्य करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है, देखो दूसरा इसमें कहता है, पहला बात दाऊद कहता है कि
आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, आओ हम प्रभु को धन्यवाद करें। दूसरा दाऊद कहता है कि परमेश्वर के नाम को हमें पुकारना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं ना प्रियो, उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। वचन कहता है तुम, जब मेरा वचन तुम्हारे पास रहेगा तो तुम मेरे साथ बने रहोगे। यू विल अबाइड विथ मी। हालेलुया। वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं ना, परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है। हम परमेश्वर के नाम को बुलाने वाले लोग रहना चाहिए। हालेलुया। जब हम लूक का लिखा हुआ 17 अध्याय को 11 से 19 वचन को हम पढ़ेंगे, वहां पर 10 कोड़ियों के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। लूक का लिखा हुआ 17 अध्याय 11 से 19, यहाँ पर 10 कोड़े जो लेप्रेसी के बीमारी के जो 10 लोग यीशु को मिलते हैं और यीशु उनको सभी को चंगाई देता है। और यीशु सभी को चंगाई को देने के बाद में 10 के 10 निकल कर चले जाते हैं प्रिय। लेकिन उसमें से जो आखिरी जो 10वां व्यक्ति रहता है, वो फिर से परमेश्वर के पास आकर, यीशु के पास आकर कहता है, यीशु धन्यवाद, तूने मुझे अच्छा किया, तूने मुझे चंगाई को दिया। प्रियो, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे जरूरत को जानता है और वो तुरंत हमें मदद करने के लिए आता है। जब ये 10 कोड़ी के लोग जब यीशु को देखे, यीशु ने उनको चंगाई को दिया। देखो, उन्होंने पुकारा, यीशु ने चंगाई को दिया। 10 में से 9 चले गए, लेकिन जो 10वां व्यक्ति था वो फिर से यीशु के पास आया और यीशु को बोला, यीशु धन्यवाद। हम भी कितने बार हम परमेश्वर को धन्यवाद के भेंट को चढ़ाते हैं प्रियो। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छा काम करता है, क्या हम परमेश्वर को जाकर परमेश्वर धन्यवाद हम बोलते हैं? इसलिए दाऊद कहता है कि कॉल अपॉन हिज नेम, उसके नाम को पुकारो, क्योंकि उसके ही नाम में हमें सब कुछ मिलेगा, हमें सामर्थ्य मिलेगा, हमें ताकत मिलेगा, हमें चंगाई मिलती है। उसके नाम में उद्धार है प्रियो, उसके नाम में हमें अधिकार को देता है। हालेलुया। और इसीलिए हमें परमेश्वर के नाम को पुकारना चाहिए, हमें परमेश्वर को लगातार पुकारना चाहिए प्रियो। दाऊद जब परमेश्वर के सामने उस तंबू के सामने नाचता था, वचन कहता है वो अपने कपड़े के ऊपर भी उसको इतना होश नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के उपस्थिति में इतना बह जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर के उपस्थिति में इतना वो बह जाता था कि उसको ये नहीं मालूम पड़ता कि आजू बाजू में क्या हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर के वचन को हमको पुकारना है, क्योंकि उसके ही नाम में हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के नाम में ही हमें छुटकारा है। और आगे वचन कहता है, उसके हर एक अच्छे काम को लोगों को बताओ, मेक नोन हिज डीड्स अमंग द पीपल्स। हम लोगों को हमारे जीवन में जो अच्छे काम जो परमेश्वर ने किया है, हम वो लोगों को बताना है। हमें लोगों के सामने ये बताना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कितने अच्छे कामों को किया है, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम कितने बार लोगों को बोलते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद कहता है कि हम परमेश्वर लोगों को, जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो अच्छे कामों को किया है, उसको हम परमेश्वर के सामने बोलना चाहिए। हालेलुया। हम उसको डिक्लेयर, कन्फेस करना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये अच्छा काम किया, परमेश्वर तुझे धन्यवाद। आइए हमारे के वचन को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीका का 5वां अध्याय, उसका 16 से 18 वचन को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18। सदा आनंदित रहो,
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सदा आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। 16 वचन कहता है कि रिजॉइस ऑलवेज। हालेलुया। परमेश्वर में प्रियो हमें सदा आनंदित रहना है। और दूसरा कहता है कि निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहो और हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है। हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में बुरा भी होते रहेगा ना, परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि कभी कभी बुराई में से परमेश्वर अच्छाई को निकालने का सामर्थ्य को रखता है। हालेलुया। ये हमें विश्वास करना है। अगर मेरे जीवन में या मेरे साथ कोई बुरा हो रहा है, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ या धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इस बुराई से तो मेरे जीवन में अच्छाई को करे। हालेलुया। प्रियो, मैं जानती हूँ अभी जो गए हफ्ते हमने 2 बार कपल्स का मीटिंग रखा, जो एजरा और नेहमाया के लिए। देखो, एक अच्छा समय था कि हम पति पत्नियों के साथ बैठकर प्रार्थना कर सके। देखो, हम उनके साथ बैठे, हम लगातार प्रार्थना किए। क्या प्रार्थना किया कि परमेश्वर परिवारों को जोड़े हुए रख। नेहमाया जैसा यरूशलेम के दीवार को बांधने के लिए उसको एक बोझ था। प्रियो, हमने भी पति पत्नी को बुलाकर उनके साथ बैठकर प्रार्थना किया, ये कि परमेश्वर जिस बात को तूने किया है, तूने शुरुआत किया है, वो अंत तक बने रहना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, जब कलीसिया कुछ ऐसे कामों को कर रहा है तो ताकि आप आशीषित हो जाए। जवान लोग को लेकर जब पास्टर साहब जाते हैं पहाड़ के ऊपर, या जो लीडर्स लोग उनके साथ में जो बातचीत करते हैं व्हाट्सएप में, किसके लिए? क्योंकि जवान भी ये सीखना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए, तो उनके अंदर भी परमेश्वर का वचन जाना चाहिए। प्रियो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब जवान बढ़ता है तभी ही उसको परमेश्वर के वचन सिखाना चाहिए, ताकि कोई संसार के बातें उसके अंदर ना आए। हालेलुया। देखो, जब ये सब कुछ हो रहा है, हम यही बात को धन्यवाद करते कि परमेश्वर हमारे जन, हमारे बच्चे, हमारे जवान सब कुछ क्या करे, किंगडम ऑफ गॉड के लिए तैयार रहे, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार रहे, परमेश्वर के राज्य के लिए मजबूत बने, ताकि वचन उनके अंदर बने रहे, ताकि परिवार हमेशा जुड़कर रहे। हालेलुया। तो मैं आप सभी को परमेश्वर, सच में बहुत अद्भुत बात है, पर लगातार जब तक हम लोग इस लॉकडाउन भी रहेगा तो ये परमेश्वर धन्यवाद, लेकिन जितना हो सके परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताओ। प्रियो, परमेश्वर में बने रहो, सदैव धन्यवाद की प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहो, परमेश्वर के नाम को पुकारते रहो, परमेश्वर के हर एक अच्छे बातों को लोगों को बताओ, उनको प्रोत्साहित करो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद दो इस वचन के लिए। जैसे हम अगले हफ्ते डैनियल के हफ्ता कर रहे हैं, डैनियल्स वीक, तो हम जो भी हम कार्यक्रम करेंगे उसके बारे में हम आपको कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप के द्वारा। हम सोच रहे हैं कि हम होल नाइट प्रेयर को करें। अगर होल नाइट प्रेयर हम कर रहे हैं तो वो भी आपको हम कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको होता है तो आप आ सकते हैं, या तो हम जूम में आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। जूम के साथ लगकर हम लोग सभी लोग बैठकर हम रात के प्रार्थनाओं को करेंगे, लेकिन आपको सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन आप तैयारी में रहो, प्रार्थना करो। जिस तरह से दानियल तैयार था, उसी तरह से हमें भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार रहना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए। आप जो महान परमेश्वर है, आपका दया सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी हमने वचन को पढ़ा कि हम प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं।
हम आपके नाम को लगातार पुकारने वाले लोग बना परमेश्वर। पिता, चाहे हमारे परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन आपको पुकारने वाले लोग बना परमेश्वर। और पिता, हर एक अच्छे कामों को हम दूसरों को बताकर आपको धन्यवाद करने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। जितने भी लोग सुन रहे हैं पिता, बहुत से लोगों का हृदय टूटा रहेगा, बहुत से लोग दुख में रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आप जो आनंद का परमेश्वर है, खुशियों का परमेश्वर है, हम उनके जीवन में आनंद को बोलते हैं, खुशी को बोलते हैं परमेश्वर, ताकि वो भी आपको धन्यवाद करें। धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। और पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आने वाले दिन हम सभी के साथ रहे, आमीन।